आप रिकॉर्डिंग कर रहे सर? ये क्या है तेरा कौन सा वाला है? सर ये नो सिग्नल क्या बता रहा है, ये ऑन है क्या? हाँ जी। Okay. Okay, so hello everyone and good evening to all of you. So this lecture is especially dedicated for SSC JE preparation, SSC JE aspirants, especially for mechanical engineering students. यहाँ पे मैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने जा रहा हूँ. एंड दिस सब्जेक्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर योर अपकमिंग SSC JE एग्जाम. करेक्ट. तो अगर आप लोग अपियर हो रहे हो तो इस सेशन को छोड़ना मत. क्या पता आपको यहीं से कुछ 5-7 क्वेश्चन देखने को आराम से मिल सकते हैं. ठीक है, तो फटाफट चलो ज्वाइन करो, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं. Okay, so you can see here, this is first question. As per the Gibbs phase rules, if number of component is equal to 2, then the number of phases will be. कितनी phases हो सकती है as per Gibbs phase rules? So you can see here, if I talk about Gibbs phase rules, and for material science, if I talk about with respect to material science, correct, the Gibbs phase rules is P plus F. This is modified Gibbs phase rules. P plus F is equal to C plus 2. So here we have how many number of phases? That is number of component is equal to 2. Number of component is equal to 2. क्या है यहाँ पे? Number of component is equal to 2. Is it right? So it can be written as 2 plus 2. So number of phase is equal to 4 minus F star. And what is the minimum degree of freedom? Then obviously the minimum degree of freedom that is F star is equal to 0. ये क्या हो सकता है? 0 हो सकता है. Then the number of phases must be क्या होना चाहिए? The number of phases must be less than or equal to 4. Is it right? क्या होना चाहिए? Degree of, sorry, here I make one mistake, that is this is 1 not 2. Is it right? This is modified Gibbs phase rule. So this is 3 minus F, and it can be written as less than equal to 3. Is it right? So if we use with respect to material science, then obviously the answer is 3. Is it right? But you can see here in this question, जब आप एग्जाम में अपेयर हो गए तो यहाँ पे कहीं भी ऐसा मेंशन किया है कि दिस क्वेश्चन बिलोंग टू मटेरियल साइंस, हमें इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है. एज पर द गिब्स फेज रूल्स, इफ द नंबर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू 2, देन द नंबर ऑफ फेजेस विल बी. करेक्ट. तो मटेरियल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर होना चाहिए 3. बट अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स के रिस्पेक्ट में बात करूं तो हमारे पास जो गिब्स फेज रूल्स होता है कुछ इस तरीके से होता है, एंड दिस can be written as 2 plus 2 minus F star, then the number of phases will be less than equal to 4. Why I am writing less than or equal to 4? Because degree of freedom minimum क्या सकती है? 0, or it may be 1, it may be 2. Yes or no? So the number of phases will be 4 होना चाहिए. अब क्वेश्चन आता है कि इनमें से क्या आंसर करो. Is it right? तो देखो, जब मटेरियल साइंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, then you use this relation. Otherwise we always discuss a general Gibbs phase rules. So the correct answer is option C, that is 4. Is it right? तो ये किसके लिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं? स्पेशली फॉर मटेरियल साइंस. अगर आपको यहाँ पे मटेरियल के बारे में बोलता है कि in the material science the number, if in any particular alloy the number of compositions are 2, then find out the degree of freedom, then the answer will be 3. बट अगर इन जनरल बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? दिस इज 4.
Is it right? तो I hope आपको ये आंसर पता चल गया हो कि why it is 4. Is it right? चलिए आगे बढ़ते हैं. Next question. In an eutectic reaction, a liquid solution solidifies at a you can see here. यहाँ पे reaction क्या है पहले ये देख लो आप. This is a eutectic reaction. Eutectic reaction means one liquid will be converted into two solids. This is called eutectic reaction. ये तो आपको टिप्स में आना चाहिए. What is eutectic? What is eutectoid? What is peritectic? What is peritectoid reaction? अब इसके रिस्पेक्ट में क्या होना है? लिक्विड सॉल्यूशन सॉलिडिफाई एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर टू फॉर्म वन मॉडिफाइड लिक्विड फेज एंड वन मोर सॉलिड फेज. नो, दिस इज रॉन्ग आंसर. नेक्स्ट, अ सॉलिड सॉल्यूशन मेल्ट्स एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर to form one solid phase and two molten liquid. This is also wrong. And a liquid solution solidifies at a constant temperature to form two more solid phases. This is wrong. So the definitely option D is the right one. अब क्यों राइट है देखते हैं. A solid solution melts at a constant temperature to form two more liquid phases. That's why this is the right answer. तो आपको क्या पता होना चाहिए? You must know this equation. If you know this relation, then definitely you will give the correct answer. Is it right? Okay, so option D is the right one. Next. Perlite is a combination of. Perlite क्या होता है? Perlite is nothing but this is a phase mixture of like this. Correct? So you can see here this white region is called as ferrite. This is called as cementite. So alternate layer of cementite and ferrite. This is called as perlite structure. So cement. So you can see here the ferrite and cementite. Yes, combination. And cementite and gamma iron, wrong. Ferrite and austenite, this is wrong. Ferrite and iron graphite, wrong. So the correct answer is option A. Perlite is a phase. This is not a phase. This is a phase mixture of ferrite and cementite. And it gives us alternate structure, alternate layer of ferrite and cementite. Okay, next question. Eutectic reaction for iron carbon system occurs. Eutectic reaction always occurs at 723 degrees centigrade. You can see here iron carbon diagram. I'm not drawing complete iron carbon diagram. It is looking like this. Is it right? So this temperature line is 723 degrees centigrade. Corresponding to this, here we have 0.83% carbon. Is it right? Here we have alpha, here we have austenite, here we have alpha plus austenite. So this line represents eutectoid temperature line. So this the correct answer is 723 degrees centigrade. Okay, next. In a eutectic system, two elements are completely soluble. Two elements are completely insoluble in solid and liquid state, soluble in liquid state, soluble in solid state, insoluble in liquid state. So the correct answer is in a eutectic reaction. Let's see if I draw a eutectic phase diagram. Then you can see here it is looking like this. This is a lead-tin system. This is a eutectic phase diagram for lead-tin system. Is that right? Lead-tin system. Correct? So this is the composition at which the complete, in this we have this is a lead PV, 100% lead, and here we have 100% tin. So this alpha represents the solubility of tin on lead, and this beta represents solubility of lead on tin. And you can see here in the solid state both elements are not completely soluble, but in liquid state both are soluble. Is it right? So in this question we have an eutectic system too. Eutectic system means this is a point at which the liquid is directly converting into solid. That's why this is called eutectic point, and this diagram is called as eutectic phase diagram. So in a eutectic system, two elements are completely soluble in liquid state, insoluble in solid and liquid. This is wrong. Insoluble in solid बस होता है तो correct होता है, but यहाँ पे liquid भी लिख दे इसलिए wrong है. Soluble in solid state, no. Insoluble in liquid state, this is also wrong. So the correct answer is option B. Is it right? So I hope you will understand why we have B is the right answer. Okay, next. Carbon occurs in steel in the combined state with iron to form the component
that is called cementite. ये तो आपको याद होना चाहिए. Cementite is the right answer. Cementite is the right answer. Okay, iron carbon alloy containing 1.7 to 4.3% carbon is called as, you can see here, if I draw a carbon iron carbon diagram, then it is looking like this. We have, this is iron carbon diagram, is it right? Like this. Okay, so you can see here, this is 0.8% carbon, 2.1% carbon, 4.3% carbon. ठीक है, पूछ रहा है in between 1.7 to iron carbon alloy containing 1.7 to 4.3 means in this region. So this is called hypoeutectic. क्या कहलाएगा? Hypoeutectic cast iron. You can see here, this is hypoeutectoid steel. This is hypereutectoid steel, and this is hypoeutectic, and this is hypereutectic cast iron. Is it right? This is hypoeutectic cast iron, this is hypereutectic cast iron. So the correct answer is option C. Next, when 1% plain carbon steel is slowly cooled from the molten state to 740 degrees centigrade, the resulting structure will be at 1% carbon. You can see here 1% carbon means, you just see this portion of the iron carbon diagram. This is 0.83, and corresponding to this we need to find out 1% carbon. Is it right? So at this point you get perlite. So obviously in this region we get perlite plus cementite. Perlite plus cementite. You must remember, here we have perlite plus ferrite, and this is the boundary of perlite. Is it right? Correct. So the correct answer is perlite and cementite. Perlite and cementite, that is option D is the right answer. You must remember this. इसके बाद कहीं भी जाओगे, everywhere you get perlite plus cementite. इससे पहले perlite plus ferrite. यहाँ पे क्या मिलेगा? फेराइट. यहाँ पे क्या मिलेगा? फेराइट प्लस ऑस्टेनाइट. दिस इज ऑस्टेनाइट. यहाँ पे क्या मिलेगा? ऑस्टेनाइट प्लस Fe3C. इज इट राइट? तो ये आयरन कार्बन डायग्राम में एवरीवेयर आपको पता होना चाहिए कौन सी फेजेस एग्जिस्ट कर रही है. इसके रिगार्डिंग मेरा ऑलरेडी एक लेक्चर है योर पीडी एजुकेशन में, आप जाओगे यूट्यूब चैनल में तो मटेरियल साइंस में मैंने फेज डायग्राम को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वहां पे आप जाके देख सकते हो. नेक्स्ट आते हैं, which one of the following cast iron consist of carbon in rosettes form? देखो rosettes form जो होता है वो malleable cast iron में होता है. Nodular cast iron, it is also called as ductile. This is also called ductile cast iron. करेक्ट है. डक्टाइल कास्ट आयरन में जो आपके कार्बन होते हैं वो लगभग स्फेरिकल शेप में होते हैं, लगभग स्फेरिकल शेप में होते हैं. इज इट राइट? ये ब्लैक डार्क स्फेरिकल शेप जो मिल रहा है ये कार्बन को बता रहा है. इसे बोलते हैं नोड्यूल, इसको बोलते हैं नोड्यूल. अब अगर यही नोड्यूल थोड़ा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हो जाए, कुछ इस तरीके से टेढ़े मेढ़े कुछ इस तरीके से हो जाए, तो इनको बोला जाता है रोसेट्स. उनको बोला जाता है रोसेट्स. इज इट राइट? रोसेट. इज इट राइट? तो ये कौन सा होगा? दिस इज कॉल्ड malleable cast iron. एंड एक बात याद रखना, malleable cast iron इज मेड फ्रॉम व्हाइट कास्ट आयरन एंड nodular cast iron इज मेड फ्रॉम ग्रे कास्ट आयरन. तो ये भी आपको याद होना चाहिए पैरेलली. malleable cast iron is made from white cast iron, nodular cast iron is made from gray cast iron. Is it right? तो आई होप अब आपको क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस पता चल गया कि रोसेट्स क्या होता है. दिस इज कॉल्ड रोसेट. इज इट राइट? दिस इज कॉल्ड रोसेट. सॉरी, पहले ही सही लिखा था. एंड दिस इज डक्टाइल कास्ट आयरन और नोडुलर कास्ट आयरन और नोड्यूल्स. ओके ओके. नेक्स्ट, पेरिटेक्टोइड रिएक्शन. पेरिटेक्टोइड अगर आपको याद हो देन यू कैन सी हियर इट इज लुकिंग लाइक दिस. हाँ, यस, पेरिटेक्टोइड रिएक्शन पूछ रहा है. देयर इज नो सच रिएक्शन इन आयरन कार्बन डायग्राम.
ऐसी कोई रिएक्शन आपको आयरन कार्बन डायग्राम में देखने को नहीं मिलेगी। अब आप बोलोगे सर होती तो है एक, करेक्ट। तो ये जो रिएक्शन आप देखते हो, मैं पूरा डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहा, 1410, 1493, 1539 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड पेरीटेक्टिक। क्या बोलते हैं इसको? पेरीटेक्टिक। देखो यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे डेल्टा आयरन है, यहाँ पे डेल्टा प्लस लिक्विड है। तो डेल्टा आयरन प्लस लिक्विड अगर ऑस्टेनाइट, यहाँ पे ऑस्टेनाइट है, इसमें कन्वर्ट हो, दैट दिस इज कॉल्ड पेरीटेक्टिक। लिक्विड है तो टिक जरूर होगा, यह ध्यान रखना। लिक्विड है तो टिक जरूर होगा। यहाँ पे टॉइड लिखा है, मतलब सॉलिड में कन्वर्जन, वन सॉलिड विल बी कन्वर्टेड इनटू थर्ड सॉलिड। दिस इज कॉल्ड पेरीटेक्टॉइड रिएक्शन एंड देयर इज नो सच रिएक्शन इन आयरन कार्बन डायग्राम। ऐसी कोई रिएक्शन आपको आयरन कार्बन डायग्राम में देखने को नहीं मिलेगी। तो बोलो सर ऑप्शन सी क्यों नहीं हो सकता है? तो वन सॉलिड जब दो सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इसको बोला जाता है यूटेक्टॉइड रिएक्शन। ये होता है यूटेक्टॉइड। कहां पे मिलेगा? यू कैन सी हियर, कहां पे मिलेगा? इधर कहीं चले जाते हैं, चलो इधर जोड़ जाड़ के चलो बना देंगे। तो ये जो पॉइंट होता है, यहाँ पे ऑस्टेनाइट का कन्वर्जन होता है अल्फा प्लस Fe3C में। तो ये दो फेजेस मिलते हैं जिसको हम परलाइट बोलते हैं। तो वन सॉलिड विल बी कन्वर्टेड इनटू टू डिफरेंट सॉलिड, देन दिस इज कॉल्ड यूटेक्टॉइड रिएक्शन। एंड व्हेन टू सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू थर्ड लिक्विड, देन दिस इज कॉल्ड पेरीटेक्टॉइड रिएक्शन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। Okay, two weight percentage of carbon in the weight percentage of carbon in cementite। देखो ये कैसे मिला? सीमेंटाइट क्या होता है? Fe3C। अगर इसमें वेट परसेंट निकालना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन ओवर Me3C कर दो। तो ये कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12 और आयरन का होता है 56, और दो आयरन, 3 आयरन है तो 3 से मल्टीप्लाई करो प्लस 12, इसको सोल्व करोगे तो 12, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 180 और 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा 6.67। ये कैलकुलेशन चेक, चलो मैं कर देता हूँ। 160, यस इट इज राइट, दिस इज राइट, करेक्ट करेक्ट, समझ में आ गया? 6.67% इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, critical cooling rate on time temperature transformation curve is that slowest rate of cooling। slowest rate of cooling अगर करोगे तो कोर्स पर लाइट मिलेगा। देखो this is my triple T diagram, this is my triple T diagram and you can see this is martensite start, martensite finish, this is critical, this is eutectoid। अब यहाँ पे अगर मैं कूलिंग की बात करूं, सपोज अगर कूलिंग आपने स्लो किया देन यू गेट कोर्स पर लाइट, अगर ऐसा किया तो फाइन पर लाइट, अगर आपने यहां से रुक के इधर कूलिंग कर दिया तो बेनाइट स्ट्रक्चर, और अगर आपने डायरेक्ट कूलिंग कर दिया तो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको मिला कोर्स पर लाइट, फाइन पर लाइट, बेनाइट, और यहाँ पे मिला मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर। तो ये तो आपको टिप्स में पता होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है कोर्स पर लाइट। नेक्स्ट, ऑफ द various microstructure that may be proceeds produced for a given steel alloy, which among the following is the hardest। ओहो, हार्डेस्ट जो होता है धरती में सबसे ज्यादा जो हार्ड स्टील है वो है मार्टेनसाइट। सॉरी, आयरन का जो हार्डेस्ट फॉर्म है वो क्या होता है? मार्टेनसाइट। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, श्रिंकेज अलाउंस इज मेड बाय, श्रिंकेज अलाउंस इज मेड बाय, बता सकते हो क्या आएगा श्रिंकेज अलाउंस? श्रिंकेज अलाउंस होता है एडिंग टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमेंशन। नेक्स्ट है सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल। नो, देखो श्रिंकेज अलाउंस की बात करें तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। किसमें ऐड करेंगे? एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ। यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या है? एडिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमेंशन, सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमेंशन। रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, this is absolutely wrong। subtracting from external dimension and adding internal, this is also wrong। adding to external dimension and subtracting from internal, this is also wrong। यहाँ पे स्टूडेंट गलती करेंगे, हमेशा याद रखना श्रिंकेज अलाउंस हमेशा ऐड किया जाता है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल हो, doesn't matter, is it right? doesn't matter। next, a riser compensates for the shrinkage that happens in the casting process। राइजर का क्या फंक्शन है? राइजर एक रिजर्वायर का काम करता है जो मोल्टेन मेटल प्रोवाइड करता है व्हाइल श्रिंकेज ऑफ द कास्टिंग। ओनली मोल्टेन स्टेज, राइजर कंपनसेट ओनली मोल्टेन, ओनली सॉलिडिफिकेशन, बोथ मोल्टेन एंड सॉलिडिफिकेशन। यस,
देखो अगर मैं यहाँ पे कूलिंग कर्व ड्रॉ करूं देन इट इज ड्रॉन लाइक दिस। तो राइजर जो होता है वो इन दोनों को कंपनसेट कर सकता है। दिस इज टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ, दिस इज कॉल्ड कूलिंग कर्व, दिस इज कॉल्ड लिक्विड श्रिंकेज, इज इट राइट, एंड दिस इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। और इन दोनों को कंपनसेट कर सकते हैं हम विद हेल्प ऑफ राइजर। एंड जो थर्ड वन होता है इसको बोलते हैं सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन, और इसको कंपनसेट करता है पैटर्न। तो देखो ये डिटेल इंफॉर्मेशन तो आपके पास होना चाहिए, और यहां से कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। नेगेटिव अलाउंस ऑन द पैटर्न, ले देख के सिर्फ एक ही पैटर्न होता है जिसमें हम नेगेटिव अलाउंस देते हैं, एक ही पैटर्न अलाउंस होता है जिसमें हम नेगेटिव अलाउंस देते हैं, दैट इज सेकिंग अलाउंस। कहीं दिख रहा है क्या? ड्राफ्ट अलाउंस, मशीनिंग अलाउंस, डिस्टॉर्शन अलाउंस एंड रैपिंग अलाउंस। यस, रैपिंग अलाउंस, रैपिंग अलाउंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकिंग अलाउंस। तो हम किस में देंगे? ओनली ऑप्शन डी में। रैपिंग अलाउंस देखो होता क्या है, सपोज दिस इज टॉप व्यू ऑफ द कास्टिंग, दिस इज पैटर्न। अगर आपके यहाँ पे सराउंडिंग में सैंड है और आपको इस पैटर्न को विड्रॉ करना है, देन ऑब्वियसली यू आप क्या करोगे? इसको थोड़ा सा हिलाओगे डुलाओगे, दिस इज सेक करना, सेकिंग एक्शन करोगे, जिससे थोड़ा सा बॉन्ड ब्रेक हो जाए पैटर्न और सैंड के बीच में, एंड लिटिल बिट वी गेट स्पेस so that we can easily withdraw the pattern. So while seeking its a dimension, the cavity dimension will enlarge. So to compensate this enlargement, we provide negative allowance. Is it right? So this is called wrapping allowance. This is also called as seeking allowance. नेक्स्ट क्वेश्चन आया, स्वीप पैटर्न आर यूज फॉर मोल्डिंग। देखो स्वीप पैटर्न अगर बोल दिया है तो यहाँ पे दो तरीके के पैटर्न मैं आपको बताऊंगा, एक होता है स्वीप पैटर्न और होता है सेगमेंटेड पैटर्न। स्वीप पैटर्न में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई सपोज ये पैटर्न है, इस पैटर्न को आपने अगर वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर दिया, देन यू विल गेट अ 3 डायमेंशनल कैविटी लाइक दिस। तो 2D पैटर्न की हेल्प से हम 3 डायमेंशनल कैविटी बना सकते हैं, बशर्ते ये सिमेट्रिकल होना चाहिए। इस सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के शेप को हम यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर होगा सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि जो कैविटी बनती है बाय रोटेशन ऑफ दिस पैटर्न अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस है। इज इट राइट? चलिए नेक्स्ट आते हैं। Sweep patterns are used for, oh this question is repeated, sorry, option D is the right answer, you just leave this. The property of the sand due to which it evolves a great amount of steam and other gases, that is called, you must remember, permeability. Permeability is nothing but this represents the breathing tendency or breathing capacity of the molding sand, or simply we can say gas evolving capacity of the molding sand is called as permeability. What is cohesiveness? The bonding between similar particle is called as cohesiveness, and adhesiveness means bonding between dissimilar particles. Okay, next you can see here chaplets are placed between mold and core. chaplets का function क्या होता है? देखो बंधु, let's say this is your mold cavity, and in this we have, this is a core, and now when we place a core, then obviously if we have molten metal inside it, then it will apply some buoyancy force, and due to this buoyancy force this core may shift from its original position. So to prevent this shifting, here we provide a metallic here we provide support, and this metallic support is called as chaplet. So when chaplet is required, so when core print area is not able to resist buoyancy force, then this is external support is required. That external support is called as chaplet. So reduce direction solidification, wrong answer. Help local alloying, no, galat. Prevent core movement, yes. To buoyancy, yes, option C is the right answer. आगे भी पढ़ लेते हैं. Help easy removal, no. Help, no. तो क्या करता है? ये कोर को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है. इज इट राइट? अगर buoyancy फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोर प्रिंट एरिया सफिशिएंट नहीं है, then you need some extra support, and that extra support is provided by the chaplet. So the correct answer is option C. Okay, next, the part of a getting system which regulates the rate of pouring of molten metal is.
और देखो मोल्टेन मेटल को पोरिंग को रेगुलेट कौन करेगा? जो सबसे मिनिमम एरिया होगा, और सबसे मिनिमम एरिया क्या होता है? चोक एरिया। थ्रू आउट द कास्टिंग का जो मिनिमम एरिया होता है उसको हम चोक एरिया कहते हैं। दिस इज द मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया, मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया throughout throughout the getting element, throughout the getting element, throughout the getting elements. Is it right? Throughout the getting element. This is called as choke. This is called as choke. This is called as choke. Is it right? Investment casting is used for, investment casting किस लिए यूज होता है? For mass production, for shape that are made with a difficult using complex pattern is sand casting. Stainless steel parts shapes which are complex, integrate and cannot be cast by any other method. So which one is the right answer? Shapes, यहाँ पे देखो mass production is also right. Shapes that are made with a difficult using complex part in sand casting. This is also a sand casting process. Is it right? Yes, but it can produce complex part. Stainless steel part, this is not necessary. We can produce stainless steel part also. Shapes which are complex, integrate and cannot be casted by other method. Then this option will also be correct. Shapes which are complex, integrate and cannot be casted by any other method that we can cast with the help of investment casting process. So the most appropriate अगर आंसर की बात करूं, then option D will be the right choice. Option D will be the right choice. When two streams of molten metal do not fuse with each other during casting of an automobile part, the defect is known as. देखो सिंपल सा तरीका मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ. Let's suppose here we have a molten metal. Yes or no? यहाँ से एक मोल्टेन मेटल स्ट्रीम जो सॉलिडिफिकेशन फ्रंट मूव करेगा, सिमिलरली इधर से एक सॉलिडिफिकेशन फ्रंट मूव करेगा. यस और नो? और जब दोनों सॉलिडिफिकेशन फ्रंट आपस में फ्यूज ना हो, जिसे कहते थे हम, दिस इज कॉल्ड कोल्ड शट इफेक्ट. तो इसे कहते हैं हम कोल्ड शट डिफेक्ट. इज इट राइट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कोल्ड शट डिफेक्ट. Next, you can see a casting defect which occurs due to improper venting of a sand is known as. देखो improper अगर vent hole provide किया गया है, then obviously इसकी वजह से blow hole type के defects produce होंगे. देखो blow hole soil में क्यों नहीं कह रहा हूँ, blow hole कह रहा हूँ. देखो आपके पास यहाँ पे अगर सपोज एक मोल्ड कैविटी है और इसके सराउंडिंग में यहाँ पे मोल्डिंग सैंड है, अगर यहाँ पे प्रॉपर परमेबिलिटी नहीं हुई तो इसके आसपास की जितनी भी मॉइस्चर कंटेंट है वो इवोपरेट हो जाएगा और उसको स्केप होने के लिए जगह चाहिए. अगर नहीं मिला तो वो कुछ इस तरीके से एक सरफेस में ऐसा एक फफोला टाइप का, इसे बोलते हैं ब्लो होल, इस तरीके का एक सरफेस बन जाएगा. इज इट राइट? लाइक दिस, इस कॉन्केव सरफेस टाइप का यहाँ पे एक सरफेस प्रोड्यूस हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड ब्लो होल. इज इट राइट? This is called blowhole. So improper permeability of the molding sand causes this defect. Okay, next, a DC welding power source has a linear voltage current characteristic with an open circuit voltage of 80 volt. देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ, अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ओपन सर्किट वोल्टेज जो है वो 80 वोल्ट दिया हुआ है and short circuit current is 300 ampere. Then for maximum power आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, करंट की वैल्यू क्या होगी. इसका सिंपल सा आंसर है, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो अगर करंट पूछे तो शॉर्ट सर्किट करंट का आधा कर देना, यही आंसर होगा. 300/2 कर दोगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी 150. अब नाउ क्वेश्चन इज क्यों ऐसा आधा क्यों कर रहे हैं हम, तो देखो इसका लॉजिक मैं बताता हूं. देखो पावर इज इक्वल टू होता है वी आई इज इक्वल टू, और हमें पावर चाहिए, पावर इज अ फंक्शन ऑफ करंट, सो वी आई. इज इट राइट? एंड you also see open circuit voltage upon voltage plus short circuit current, उल्टा लिख रहा हूं मैं, वोल्टेज ओवर ओपन सर्किट वोल्टेज प्लस करंट अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट, दिस इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी ओ सी वी माइनस आई अपॉन एस सी सी. करेक्ट? इसकी अगर मैं वैल्यू पुट करूं या डायरेक्ट पावर ही रख देता हूं तो ओसीबी आपका कितना है 80 वोल्ट माइनस और यहाँ पे ओसीबी भी होगा साथ में, तो ये 80/300 इंटू करंट, और इंटू करंट से और मल्टीप्लाई कर दो इस करंट से, क्योंकि पावर इज इक्वल टू क्या, तो वी इंटू आई, वी यहाँ से मिल गया, आई पहले से ही है,
तो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 80i माइनस 80/300 आई स्क्वायर। करेक्ट। अब आपसे पूछता है कि फॉर मैक्सिमम पावर निकालना है, तो आप क्या करो, डेल पी बाई डेल आई इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो 80 माइनस ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 80/300i इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई अगर करोगे तो ये 80 से 80 तबाह हो जाएगा और i आ जाएगा आपका 300/2। इसीलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। तो देखो, इतनी प्रोसीजर फॉलो करने से बेटर है कि याद रख लो कि जब भी मैक्सिमम पावर कंडीशन बोलता है तो या तो आप करंट पूछेगा तो ये रख दो, अगर आपसे वोल्टेज पूछ रहा है तो ओपन सर्किट वोल्टेज बाय 2 कर दो। इज इट राइट? दोनों ही आंसर करेक्ट है। तो बेस्ट है कि इतनी लंबी प्रोसीजर ना फॉलो करके शॉर्टकट मेथड अपनाओ और आगे बढ़ो। विद इन फ्यू सेकंड यू विल गेट द आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज 150 एम्पियर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Okay, during the arc welding 2/3 of the heat is developed near the positive। देखो, एक चीज मैं पहले से बता देता हूं, आपके पास अगर इलेक्ट्रोड है एंड दिस इज वर्कपीस, दिस इज इलेक्ट्रोड एंड दिस इज वर्कपीस। अगर आपके पास है यहाँ पे डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, इसको अगर मैं लिखूं तो यहाँ 1/3 और यहाँ पे 2/3 हीट होगी। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ रिवर्स पोलैरिटी, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे 1/3 हीट होगा। किसकी बात कर रहे हैं हम? हीट की। अब आप आंसर कर सकते हो। ड्यूरिंग द आर्क वेल्डिंग 2/3 ऑफ द हीट इज डेवलप्ड नियर द पॉजिटिव पोल एंड 1/3 इज डेवलप्ड नियर द नेगेटिव पोल। यहाँ पे चलो ये भी कंप्लीट कर देता हूँ। दिस इज पावर सोर्स और यहाँ पे ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव और वाइस वर्सा। अगर इलेक्ट्रोड नेगेटिव और वर्कपीस पॉजिटिव है तो स्ट्रेट पोलैरिटी अगर उल्टा कर दे तो रिवर्स पोलैरिटी होगा। तो 2/3 ऑफ द हीट इज डेवलप्ड नियर द पॉजिटिव पोल एंड 1/3 इज डेवलप्ड नियर द नेगेटिव पोल। 3/4 ये तो रॉन्ग आंसर है, पढ़ना ही नहीं है। ये भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ दो ही ऑप्शन पढ़ना है। 1/3 ऑफ द हीट इज डेवलप्ड नियर द पॉजिटिव पोल एंड 2/3 इज डेवलप्ड नियर द नेगेटिव पोल। और यहाँ पे कोई पोलैरिटी की बात नहीं कर रहा है, तो दोनों ही आंसर सही है। 2/3 ऑफ द हीट इज डेवलप्ड नियर द पॉजिटिव पोल एंड 1/3 इज डेवलप्ड नियर द नेगेटिव पोल। ये अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर करना है बंधु, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप सी ऑप्शन आंसर करना, क्योंकि 1/3 ऑफ द हीट डेवलप नियर द पॉजिटिव, सॉरी 2/3 ऑफ द हीट डेवलप नियर द पॉजिटिव। नो, ऑप्शन सी को आप चूज करना, क्योंकि ये स्ट्रेट पोलैरिटी की बात कर रहा है। डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम स्ट्रेट पोलैरिटी को मान के चलेंगे। और ये जो बता रहा है ये डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, दोनों ही सही है। यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो स्ट्रेट पोलैरिटी को आप अज्यूम करो और उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेल्डिंग स्पैटर इज, देखो जब आप वेल्डिंग को देखो कई जगह, अगर आपने कहीं रोड साइड में वेल्डिंग देखा है तो बहुत चिंगारी निकलती है, दैट इज कॉल्ड वेल्ड स्पैटर। स्प्रिंकलिंग ऑफ द मोल्टेन मेटल फ्रॉम द वेल्ड जोन, दैट इज कॉल्ड एज वेल्ड स्पैटर एंड दिस इज अ वेल्डिंग डिफेक्ट। क्या है? दिस इज अ वेल्डिंग डिफेक्ट। ये नहीं होना चाहिए बिकॉज ड्यू टू वेल्ड स्पैटर बहुत सारा जो मटेरियल है वो लॉस हो जाता है। इज इट राइट? सो दिस इज अ वेल्डिंग डिफेक्ट, इट इज नॉट रिक्वायर्ड for any application. Okay, next in DC reverse polarity arc, ये this is not R, this is arc, this is arc welding। DC reverse polarity की बात कर रहे हैं हम, DC reverse polarity की बात कर रहे हैं। The workpiece is, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं सिंपल सा, देखो this is your electrode and this is your workpiece। reverse polarity में होता क्या है? reverse polarity में होता क्या है कि वर्कपीस को आप नेगेटिव टर्मिनल और इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल साथ कनेक्ट कर दो तो ये रिवर्स पोलैरिटी कहलाती है। आंसर क्या होगा? द वर्कपीस इज मेड पॉजिटिव एंड द इलेक्ट्रोड इज मेड नेगेटिव, दिस इज अ स्ट्रेट पोलैरिटी। द वर्कपीस इज मेड नेगेटिव एंड इलेक्ट्रोड इज मेड पॉजिटिव। सो आंसर इज ऑप्शन बी। आगे कोई ऑप्शन में नहीं पढ़ रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, व्हाट अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन? फॉलोइंग गैसेस आर यूज्ड इन टंगस्टन इनर्ट गैस। देखो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में हम आर्गन और हीलियम गैस को यूज करते हैं। आर्गन गैस और हीलियम को ही मोस्टली यूज किया जाता है। CO2 H2 यूज करते हैं, आर्गन नियॉन यूज नहीं करते, नियॉन को यूज नहीं करते, हीलियम एंड नियॉन को यूज नहीं करते। तो बेस्ट आंसर है आर्गन प्लस हीलियम। और ऑब्वियसली हीलियम बहुत कॉस्टली गैस है, तो कई बार हम आर्गन के साथ साथ CO2 को मिक्स करके यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आर्गन इज अ वेरी गुड इंसुलेटिंग एयर बट CO2 प्रोवाइड्स अ बेटर हीट कंसंट्रेशन, जो कि हीलियम का काम करता है। हीलियम भी हीट कंसंट्रेशन के साथ साथ और इनर्ट गैस के साथ साथ हीट कंसंट्रेशन का भी काम करता है। तो कई और आर्गन की हीट कंसंट्रेशन क्वालिटी पुअर होती है,
तो प्योर आर्गन ना यूज करके आर्गन प्लस हीलियम या आर्गन प्लस CO2 को यूज कर लेते हैं, डिपेंड अपॉन कि किस मटेरियल का हम वेल्डिंग करने जा रहे हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड? कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड तो आपको सबको पता होगा, मिग वेल्डिंग में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, थिक वेल्डिंग में हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। नॉन कंज्यूमेबल टेक्सटाइल इलेक्ट्रोड नाम है उसका। बाकी सॉरी क्या पूछ रहा है, नॉन कंज्यूमेबल नहीं कंज्यूमेबल पूछ रहा है, तो मिग वेल्डिंग में हम कंज्यूमेबल यूज करते हैं। देखो थर्माइट वेल्डिंग में थर्मल मिक्सचर यूज करते हैं, गैस वेल्डिंग में हम गैस यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोड को यूज किया जाए, इसलिए कंफ्यूज मत होना, मिग वेल्डिंग इज द राइट आंसर, और टिक तो कतई नहीं हो सकता। If the proportional of oxygen is less than the proportion of acetylene, acetylene अगर ऑक्सीजन एसिटिलीन से कम है तो ऑब्वियसली देखो, अगर ऑक्सीजन एसिटिलीन से कम है इसका मतलब है इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा, और इनकम्प्लीट कंबस्शन है तो यहाँ पे फ्री फॉर्म में कार्बन होगा, इसलिए हम इसको कार्बोराइजिंग फ्लेम कहेंगे। अगर ऑक्सीजन एसिटिलीन से एक्सेस में हो जाता, कंप्लीट कंबस्शन होता है, एक्सेस में ऑक्सीजन होती है, इसलिए हम उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम भी कह सकते थे। अगर दोनों रेशियो बराबर है, एकदम परफेक्ट है, तो उसे हम न्यूट्रल फ्लेम कहते हैं। करेक्ट है, तो अभी इस क्वेश्चन के लिए हिसाब से कार्बोराइजिंग फ्लेम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस इज नोन एज, देखो सीम वेल्डिंग को ही कहा जाता है कॉन्टिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग, सो यू मस्ट अवेयर विद दिस, इज इट राइट? सीम वेल्डिंग को ही कहा जाता है कॉन्टिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग। नेक्स्ट आ जाओ, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग कैन बी कैरिड आउट इन, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के लिए देखो क्या होता है, वैक्यूम की रिक्वायरमेंट होती है। कैसे? एक वैक्यूम चैम्बर है, इस वैक्यूम किस लिए रिक्वायरमेंट होती है, ये कैथोड, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक फिलामेंट होगा, यहाँ पे कैथोड रिंग होगा, करेक्ट है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होंगे, और ये वर्क पीस है जहाँ पे हमें वेल्ड करना है, ये कुछ इस तरीके से मूव करते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये स्कैटर्ड हो जाते हैं, सो वी नीड टू concentrate all the electrons towards the workpiece in a particular zone, so here we provide a vacuum. yes scattering के लिए, scattering के लिए यहाँ पे एक लेयर प्रोवाइड की जाती है। वैक्यूम का रीजन बताता हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो अगर आप वैक्यूम नहीं प्रोवाइड करोगे तो कहीं ना कहीं वो मॉलिक्यूल से टकराएगा और वो डिस्पर्स हो जाएगा, उसकी एनर्जी डिविएट हो जाएगी, करेक्ट। तो उससे बचाने के लिए हमने क्या किया कि इसको एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर रख दो, जिससे वो कहीं किसी से न टकराए, सारी की सारी इलेक्ट्रॉन बीम एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हम कंसंट्रेट कर सके, जिससे हम हाई हीट प्रोड्यूस कर दे और हम इजीली वेल्ड कर सके ऐसे मेटल्स की जिनकी मेल्टिंग टेम्परेचर क्या हो, बहुत ज्यादा हो, और जिनको वेल्ड करना डिफिकल्ट हो, वो इलेक्ट्रॉन बीम से बहुत आसानी से हो जाते हैं। बशर्ते कंडीशन ये है कि द मटेरियल मस्ट बी कंडक्टिव, नॉन कंडक्टिव मटेरियल की आप वेल्डिंग नहीं कर सकते हो विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन वेल्डिंग। नेक्स्ट है डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल सो दैट इट कैन अंडरगो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, मेटल फॉर्मिंग के लिए सबसे जो मोस्ट डिजायरेबल प्रॉपर्टी है वो होती है डक्टिलिटी एंड यील्ड स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी एंड यील्ड स्ट्रेंथ, करेक्ट, डक्टिलिटी एंड यील्ड स्ट्रेंथ इज द राइट आंसर। देखो आप बोलोगे सर क्रीप वाला क्यों नहीं हो सकता है, देखो क्रीप इसलिए नहीं होता, क्रीप इज द टाइम डिपेंडेंट फेल्यूर मेथड, फेल्यूर मोड, ये सर नो फेलियर मोड में कहूंगा इसको। और कैसा होता है, टाइम डिपेंडेंट, अगर एक कांस्टेंट लोड काफी टाइम लास्ट टाइम तक लगे तो फेलियर होता है, उसको हम क्रीप फेलियर कहते हैं। तो इसमें क्रीप फेलियर का कोई लेने देना नहीं है मेटल फॉर्मिंग से, ठीक है। नेक्स्ट आता है द प्रोसेस इन विच ड्यूरिंग फॉर्जिंग मटेरियल मूव्स टुवर्ड्स सेंटर, कौन सी प्रोसेस है जिसमें मटेरियल सेंटर की तरफ मूव करता है। देखो मेटल फोर्जिंग जब आप पढ़ोगे तो फुलरिंग है, एचिंग है, ब्लॉकिंग है, ठीक है ना, हेडिंग है, क्वाइनिंग है, स्क्रू रोलिंग है, ये सारी प्रोसेस तो आपको टिप्स में पता होना चाहिए। इसमें कह रहा है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें मटेरियल मूव करता है टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर। तो देखो इसमें अगर मैं कॉनकेव डाइस ऐसे रखूं और इससे कंप्रेस करूं तो जो मेरा मटेरियल है वो, जो मेरा यहाँ पे मटेरियल है वो सेंटर की तरफ मूव करता है। मतलब इनिशियली जो आपके पास बिलेट है वो ऐसा होगा, जब आप इसको बीच में इस डाई से कंप्रेस कर दोगे तो सेंटर पे मटेरियल ज्यादा एक्युमुलेट हो जाएगा, और इसको बोलते हैं एजिंग प्रोसेस, इसको बोलते हैं एजिंग प्रोसेस। सिमिलरली अगर आपके पास कॉनकेव कॉन्वेक्स डाई है और इससे अगर आप कंप्रेस करोगे तो मटेरियल का जो फ्लो होगा अवे फ्रॉम द सेंटर है, दूर की तरफ जाएगा, और यहाँ पे मटेरियल का फ्लो सेंटर की तरफ है, इसको बोला जाता है फुलरिंग। इसको क्या बोला जाता है, फुलरिंग, इज इट राइट? सो द करेक्ट आंसर इज एजिंग इज द राइट आंसर, एजिंग इज द राइट आंसर, थोड़ा ध्यान रखना, करेक्ट। नेक्स्ट, टू
high plate rolling using rollers of radius capital R produces a reduction in plate thickness. If this thickness reduction is delta H, what would be the percentage projected length of the arc? देखो इसका मीनिंग पहले समझा देता हूं. ये आपके पास है कुछ इस तरह, ये आपके पास रोलर है, ये आपका सीट इस तरीके से कंप्रेस हो रहा है, और ये मैं यहाँ पे सेंटर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, सिमेट्रिकल लाइन है, यही सेम चीज नीचे भी होगा, इसलिए मैंने नीचे ड्रॉ नहीं किया. करेक्ट है. तो अब आप देखोगे कि ये जो रीजन है ये कर्व्ड सरफेस है, इसको प्रोजेक्ट करें तो मुझे ये लेंथ मिलेगी, एंड दिस लेंथ इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टेड लेंथ, दिस इज कॉल्ड एज एलपी, और इसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ आर डेल्टा एच. ये फॉर्मूला याद रखना, मैं डिराइव नहीं कर रहा, आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, है ऑलरेडी डले हुए हैं. करेक्ट है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, L इज टू रूट ऑफ आर डेल्टा एच. दिस इज द राइट आंसर, प्रोजेक्टेड लेंथ. नेक्स्ट है द मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट इन कोल्ड रोलिंग ऑफ द सीट इंक्रीजेस विथ. देखो मैक्सिमम परसेंटेज रिडक्शन क्या होगा, ये म्यू स्क्वायर इंटू आर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डेल्टा, सॉरी डेल्टा एच. इज इट राइट, डेल्टा एच? करेक्ट. म्यू स्क्वायर आर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा एच, मतलब ये मैक्सिमम पॉसिबल, अरे उल्टा लिख दिया, ऐसा लिख दो, डेल्टा एच लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर इनटू आर, कुछ तरीके से. इज इट राइट? इज इट राइट? इज इट राइट? तो किस पे डिपेंड करेगा, डेल्टा एच म्यू पे डिपेंड करेगा एंड आर पे डिपेंड करेगा. तो यहाँ पे लिखा क्या है, देखो द मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट इन कोल्ड रोलिंग सीट इंक्रीजेस विथ, कैसे इंक्रीज होगा, जब आप या तो म्यू इंक्रीज करो या रेडियस इंक्रीज करो. इंक्रीजिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन राइट, डिक्रीजिंग रॉन्ग, डिक्रीजिंग रोल रेडियस रॉन्ग, इंक्रीजिंग रोल वेलोसिटी दिस इज रॉन्ग. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. इज इट राइट? तो इस तरीके से देखो, आपको ना भावनाओं से आंसर नहीं करना, ये ध्यान रखना. इंजीनियरिंग में ना सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट यही करते हैं कि अपने भावनाओं से आंसर करते हैं. अरे भावनाओं को रखो साइड में, मैथमेटिकल रिलेशन को लो, उनके बेसिस पे आंसर करो, 100% करेक्ट आंसर मिलेगा. ठीक है ना, ध्यान रखना, ये इंजीनियरिंग है, कोई रामायण महाभारत नहीं पढ़ रहे हो, हिस्ट्री का आंसर नहीं दे रहे हो कि बस जो रट लिया वही आंसर है. मैथमेटिक्स अप्लाई करो, आंसर हमेशा सही मिलेगा. द मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट, द मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट इन कोल्ड रोलिंग ऑफ सीट इंक्रीजेस विथ ऑप्शन, द मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट. अरे ये अभी तो आंसर दिया, फिर से कैसे आ गया. चलो नेक्स्ट. एक्सट्रूजन इज द प्रोसेस ऑफ, एक्सट्रूजन क्या होता है, एक्सट्रूजन का मतलब होता है कि पीछे से मेटल को धक्का देके हम एक्सट्रूड करके बाहर निकालेंगे अगेंस्ट द डाई. मतलब आपके पास एक डाई है, उसके अगेंस्ट में मेटल को कंप्रेस किया जाए, तो इसे कह देते हैं हम एक्सट्रूजन प्रोसेस. तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोड्यूसिंग होल बाय आर, रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग आंसर. मेकिंग कप शेप्ड आर्टिकल यूजिंग द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन, रॉन्ग. पुशिंग द heated billet the metal through the orifice, yes, option C is the right answer. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. करेक्ट. देखो प्रिंसिपल पता है तो आंसर तो राइट मिलेगा ही. एक्सट्रूजन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, अगेन वी गेट सेम क्वेश्चन, हाउ इट इज पॉसिबल. नेक्स्ट, इन द सीट मेटल ऑपरेशन शियर स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड इन, शियर स्ट्रेस किस में लगेगा, देखो ब्लॉकिंग, पंचिंग, ट्रिमिंग, सभी में मेटल को काटते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. ब्लैंकिंग, पंचिंग, ट्रिमिंग सारे शेयरिंग ऑपरेशन है. इज इट राइट? ध्यान रखना, रटो इसको. एक्सप्लोजिव फॉर्मिंग इज नॉट यूज्ड फॉर द फॉलोइंग, मेकिंग वेरी स्मॉल. एक्सप्लोजिव क्या होता है, इसे बोलते हैं हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग प्रोसेस. करेक्ट. तो हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग प्रोसेस जो होती है वो बल्क मटेरियल के लिए होती है. Making very small complex part, no. For large part, typical of aerospace industry, both A and B. None of the above is the correct. Making very small complex part for large parts, both A and B. मुझे ज़्यादा appropriate लग रहा है, appropriate आंसर देना है. Small size parts बना ही सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मोस्टली ये लार्ज पार्ट्स को बनाने के लिए यूज होता है. तो करेक्ट आंसर है, मैं यहाँ पे ऑप्शन सी को चूज करूंगा क्योंकि ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है. नेक्स्ट है, कोलेप्सिबल टूथपेस्ट ट्यूब्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय. कोलेप्सिबल टूथपेस्ट जो होता है वो डायरेक्ट एक्सट्रूजन से बनता है, सॉरी इंपैक्ट एक्सट्रूजन से बनता है, और आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, इंपैक्ट एक्सट्रूजन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस कोलेप्सिबल ट्यूब. इज इट राइट? ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम में आपसे बार बार पूछ रहे हैं, बार बार यही क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टूल सिग्नेचर, टूल सिग्नेचर में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू एएसए सिस्टम. अगर आपने दोस्तों थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा है तो आपको याद होगा कि यहाँ पे बैक रैक एंगल होता है, साइड रैक एंगल होता है, फिर
एंड क्लियरेंस एंगल, साइड क्लियरेंस एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल एंड नोज रेडियस। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी दैट इज 7। तो ये तो आपको टिप्स में होना चाहिए बंधु। चिप रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चिप रेशियो क्या होता है? चिप थिकनेस रेशियो ये होता है आर, जो कि अनकट चिप थिकनेस ओवर कट चिप थिकनेस, T1 by T2 अनकट चिप थिकनेस ओवर चिप थिकनेस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इफ अल्फा इज द रैक एंगल ऑफ द कटिंग फाई, सॉरी एंगल ऑफ कटिंग, फाई इज द शियर एंगल, वी इज द कटिंग वेलोसिटी। द वेलोसिटी देखो, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आप इस डायग्राम को याद रखो। ये आपका कटिंग वेलोसिटी है, ये आपका चिप फ्लो वेलोसिटी है, और ये आपका शियर वेलोसिटी है, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। इनके बीच का एंगल कहलाता है फाई। करेक्ट। अगर मैं यहां से टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये अल्फा है, ठीक है। ये आ गया 90 माइनस अल्फा, करेक्ट। और ये जो आएगा दिस इज 90 माइनस 5 माइनस अल्फा। ये आपको पता होना चाहिए। फिर साइन लॉ लगा दो, v वेलोसिटी ओवर साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा, डायरेक्ट लिख देता हूं cos 5 माइनस अल्फा, vf लिख दो साइन 5, vs लिख दो cos अल्फा। ये हमारे पास रिलेशन है। अब आपसे क्या पूछा है? द वेलोसिटी ऑफ चिप स्लाइडिंग अलोंग द शियर प्लेन इज, चिप मतलब आपको चिप फ्लो वेलोसिटी निकालना है vf। तो ये साइन फ्लाई को इधर लेके आ जाओ, तो vf इज इक्वल टू क्या हो गया? v टाइम्स ऑफ साइन 5 ओवर cos 5 माइनस अल्फा, cos 5 माइनस अल्फा v। अब देखो यहाँ पे कौन सा आंसर है? साइन 5, साइन 5 किसमें है? ये है, और cos 5 माइनस अल्फा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा ये डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा, ये साइन लॉ याद रखो, आंसर तो बनेगा ही। इज इट राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूअस शिप्स आर फॉर्म ड्यूरिंग मशीनिंग ऑफ, कंटिन्यूअस शिप्स देखो माइल्ड स्टील में बनेगा, कंटिन्यूअस शिप माइल्ड स्टील में बनने वाला है। अब बोलोगे सर एल्यूमिनियम में क्या नहीं बनता? एल्यूमिनियम के कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं, फ्रिक्शन एट द टूल चिप इंटरफेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घोषण मलिक की बुक में लिखा है। अगर आपने बेसिक मैकेनिक्स भी पढ़ा है तो आपको याद होगा कि अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेसिक मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट बताता हूँ इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, और घोषण मलिक एक इकलौती किताब है जिसमें इसके बारे में लिखा हुआ है। आप देखोगे कि जब हम ये फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स की बात करते हैं, अप्लाइड फोर्स की बात करते हैं, तो ये क्या होता है? पहले इंक्रीज होता है, फिर ये डिक्रीज होगा एंड इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये कहलाता है स्टैटिक, एफ स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एफ ऑफ एस, एंड दिस इज मैक्सिमम। और ये होता है एफ ऑफ के, काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो जो काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, वेलोसिटी इंक्रीज करने से ये डिक्रीज होता है। इज इट राइट? जैसे आप इंक्रीज करोगे वेलोसिटी तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कम हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे फ्रिक्शन ऑफ द टूल चिप इंटरफेस रिड्यूस। फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस होगा? बाय इंक्रीजिंग द कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूस हो जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये ध्यान रखना, एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है। फॉर कटिंग ऑफ ब्रास विथ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, अ लेथ टूल शुड हैव। देखो ब्रास एक ऐसा मटेरियल है जिसके लिए हम लोग जीरो रैक एंगल यूज करते हैं, इसके लिए रट्टा मार लो। जीरो रैक एंगल यूज करते हैं, इसके लिए आप रट्टा मार लो। करेक्ट, जीरो इज द राइट आंसर, जीरो इज द राइट आंसर, जीरो इज द राइट आंसर। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अजम्पशंस इन मर्चेंट थ्योरी? मर्चेंट थ्योरी के अजम्पशंस भी आपको याद होने। टूल इज परफेक्टली शार्प, राइट है। शियर इज ऑकर्स ऑन द प्लेन, ये भी होता है। अनकट चिप थिकनेस इज कांस्टेंट, ये भी सही है। कॉन्टिन्यूअस शिप विथ बिल्ट अप एज, दिस इज द राइट आंसर। हम सिर्फ ओनली कॉन्टिन्यूअस शिप कंसीडर करते हैं, मतलब परफेक्ट प्रॉपर कूलिंग हम अज्यूम करके चलते हैं, कोई बिल्ट अप एज फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। क्योंकि बिल्ट अप एज फॉर्मेशन को अज्यूम करते ही कहानी सारी बदल जाएगी, फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, सरफेस इरेगुलर हो जाएगा। करेक्ट है, और अनस्टेडी फोर्स लगने वाला है। टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आप यहाँ पे भी गलती कर देते हो, इसलिए मैंने लाइक क्या है वी टी टू द पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। जो टूल लाइफ होती है मोस्टली वो सिर्फ कटिंग वेलोसिटी पे डिपेंड करती है।
डायनोमीटर इज अ डिवाइस यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ, देखो डायनोमीटर जो होता है वो फोर्स मेजरमेंट के लिए है। अब देखो कौन सा है, यहाँ पे मुझे ऑप्शन बी दिख रहा है, फोर्स ड्यूरिंग मेटल कटिंग। सो विद द हेल्प ऑफ डायनोमीटर यू कैन मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन द टूल, इज इट राइट? इससे हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। यस शरद मिश्रा जी, ऑप्शन बी, वेलकम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बट दिस इज माई लास्ट क्वेश्चन। तो ये सेशन आपके लिए अवेलेबल है, इसको आप देख लीजिएगा। आपको अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके आने वाले अपकमिंग एसएससी एग्जाम में हो सकते हैं कई क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यहाँ से मिल जाए। तो इसको आप जरूर देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे आपके जितने फ्रेंड सर्कल है सबको इन्फॉर्म मिल जाए। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, इंजीनियर्स करियर पॉइंट एंड योर पीडिया टीम ऑलरेडी गेट बैचेस स्टार्ट कर चुके हैं। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा नियर बाई कोई भी स्टूडेंट है या ऑल ओवर इंडिया से कोई भी स्टूडेंट है, गेट 2025 की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो या किसी भी कंप्यूटर एग्जाम प्रिपरेशन कराना चाहते हो, तो यहाँ पे ऑलरेडी मॉड्यूल स्टार्ट हो चुके हैं, एसएससी के बैच ऑलरेडी चल रहा है, करेक्ट है। और गेट के बैचेस भी ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन 1 जून से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड में ज्वाइन करना चाहते हो, तो मोस्ट वेलकम टू योर पीडिया एजुकेशन एंड इंजीनियर्स करियर पॉइंट, दोनों ही आपका वेलकम करेंगे यहाँ पे। और सेक्टर 34 चंडीगढ़ में ये है इंस्टीट्यूट, तो नाम कुछ सिमिलर नाम से आप कंफ्यूज मत होना। सेक्टर 34 इंजीनियर्स करियर पॉइंट याद रखना, करेक्ट है। और हमारा बैच 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, उसको मिस मत करना, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अबेंडेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम अपेयर हो रहे हैं, और इस साल भी बहुत कम अपेयर होंगे, उम्मीद यही है। 60-65 हजार से ज्यादा अपेयर नहीं होने वाले, क्योंकि पिछले लास्ट अगर आप एडमिशन रिकॉर्ड देखोगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत लीस्ट रहा है, और अभी 4-5 साल ऐसे रहने वाला है। तो आप एक गोल्डन एरा में जी रहे हो। आप जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उससे कई गुना ज्यादा रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रीज में, पीएसयूज में, आईआईटीज में, हायर स्टडीज के लिए। तो आपको अगर थोड़ा सा भी सीरियसली प्रिपरेशन करोगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दरवाजा नॉक कर रही है। तो लेकिन आपको फर्स्ट स्टेप आपका अपना बढ़ाना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप बढ़ा दो, बिंदास, टेंशन ना लो, 100% कुछ ना कुछ भला होगा, करेक्ट है। 6 महीने टाइम है, 6 महीने अपना टाइम दे दो। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आपको पूरी पढ़ाई करनी है। दिसंबर, जनवरी में प्रैक्टिस करनी है। फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा, और अगले 3-4 महीने के अंदर जैसे मार्च में रिजल्ट आएगा, आपके पास अबंडेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हाथ में लगने वाली है, करेक्ट है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, गेट एग्जाम जरूर दो। बहुत कम लोग एग्जाम दे रहे हैं, बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम है, कंपटीशन बहुत कम है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप अब अगर मिस करें तो बाद में मौका नहीं मिलने वाला दोस्तों। तो यही 3-4 साल का टाइम था, अब आपको एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है, करेक्ट। तो चलिए फिर यही इस सेशन को एंड करूंगा मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू गाइस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।